H2M1। अब क्या स्टार्ट करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। दिस चैप्टर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर क्या था? वर्क एनर्जी पावर वाज अ स्केलर, है ना? दैट चैप्टर वाज a scalar, the entire chapter was a scalar। ठीक है, एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी इज स्केलर ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। इन सेंटर ऑफ मास, chapter name is center of mass. You will be having two topic. First is center of mass. What is center of mass? And the second is collision। आपके चैप्टर में इन वर्क एनर्जी पावर कोलिजन इज गिवन। कोलिजन इज इसमें डाल दिया गया है ना, वो सही नहीं है। पहले आपको सीओएम पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल कवर द बेसिक ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन वी विल कवर द एंटायर कोलिजन, देन वी विल कवर द रिमेनिंग सीओएम इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? हाँ सर। तो देखो, सेंटर ऑफ मास का टॉपिक डालो। सेंटर ऑफ मास मैं पूरा सेंटर ऑफ मास नहीं करा सकता क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, टॉपिक्स दैट वी विल कवर इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ फोर्स, डेफिनेशंस क्या होता है। ठीक है, सीओएम, सीओएम का आई विल राइट एज सीएम। सीएम का मतलब सीओएम ही होता है। सीओएम सेंटर ऑफ मास है ना। सीओएम इज सेंटर ऑफ मास। सीओजी क्या है? सीओजी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीओएफ क्या है? सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, सीएम क्या है? सेंटर ऑफ मास। सीजी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीएफ क्या है? सेंटर ऑफ फोर्स। दीज आर द शॉर्ट फॉर्म। बट इन दिस चैप्टर वी विल कवर द एंटायर चैप्टर इन डिटेल आफ्टर कोलिजन। कोलिजन की बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे इसमें? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन of center of mass, then ACM and VCM. What is ACM, VCM? ACM is acceleration of center of mass. What is VCM? Velocity of center of mass। ठीक है, आफ्टर COM we will, इतना होने के बाद we will start collision। collision स्टार्ट करेंगे। इसमें we will not cover center of mass and center of gravity। we will not cover these topics। we will cover these topics in the next chapter। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा what is center of mass because that will be required in collision। collision में we will cover head on collision, head on, इसको सेकेंड में डालना, जस्ट इससे पहले आएगा impulse equation that we have already covered, impulse equation, then impulsive and non impulsive forces, head on collision, head on collision and collision types, then side on or oblique collision, oblique collision। So these will be the topic, these will be the topic। we will cover calculation of center of mass and definition। ये definition हम लोग cover कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिटेल में center of mass we will cover in the next chapter। ठीक है, तो ये आपका है, इसे नोट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? मैं चीजें पूछूंगा, मुझे बताते जाना। सेंटर ऑफ मास, COM क्या होता है? वी कॉल इट सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द डेफिनेशन? सेंटर ऑफ मास इज अ point where we can assume
entire mass of the system or body of the entire mass of the system or body to be present as point mass जैसे पीछे when we are studying about the mass, जो भी मैं ब्लॉग बना रहा था, whatever body we were taking, सिलेंडर हो कुछ भी हो, एक्चुअली we were taking, मैंने कभी नहीं बोला कि इसका शेप ऐसा है, जैसे क्यूब बना दिया, एक्चुअली we were taking as a point mass, इसको क्या ले रहे थे, point mass. इससे पहले जो भी हम चीजें पढ़ रहे थे, those were the point mass, whether they were cuboid, cylinder, sphere, doesn't matter. We were taking all of them as a point mass. What is point mass? Point mass is just a point having the mass. Okay, so it will not be having any shape or size. It's very small. It's just a point and having the m mass. Okay, so whatever questions we were taking in the laws of motion, work energy, all those mass were the point mass, है ना? Now we will talk about the shapes. Shape की बात करेंगे and we will solve the question considering the shape of the body. ठीक है? So मैं आपको एक एग्जांपल से पूछ रहा हूँ. I will ask you and you will answer this. That suppose if you have to balance this rod, so at which point your finger should be? At which point? On the left side, on the middle, on the right side, which side? कहाँ पे रखोगे? Center पे, है ना? That you know that when you put your finger in the center, you can balance this rod, है ना? होगा क्या? That means this is the center of mass. वैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ that is incorrect. आप फोर्स बैलेंस कर रहे हो, लेकिन आपका आइडिया ये जो है वो कि entire mass should be present at the center, वो आइडिया सही है ना? तो इसका मतलब है you are assuming that entire mass is present at this point, ना? हाँ या ना? सही है कि नहीं? Is it correct? बोलो. Awesome. So this is the center of mass. Center of mass is a point where you can assume the entire mass of the system to be present as a point mass. Clear है कि नहीं? Is it clear? अब एक और एग्जांपल दूं. Next, suppose you are having a ring. Ring का बताओ. Where you can assume the entire mass of the system to be present as a point mass. कहाँ पे? At center. हाँ या ना? Awesome. So this is the center of mass. बहुत सिंपल से concept है. Okay. Now suppose you are having a disk. This is the disk. Where you can assume at the center, na? At the center. Clear? Or it becomes the same as the center of gravity, no? No. When we talk about the force balancing, then we were talking about the force of gravity, COG. But पहले एग्जाम्पल से आपने सीखा है दैट बैलेंसिंग कर रहे हैं तो अच्छा सेंटर ऑफ मास लाइज इन द मिडिल ऑफ द रॉड, ठीक है. सेकंड से आपको बैलेंस, सेकंड में आप हवा में थोड़ी ना फिंगर रख दोगे इन द केस ऑफ रिंग, है ना. सेकंड से आपको समझ में आ गया ओके द बैलेंसिंग वाला पॉइंट ऐसा कुछ है जहां एंटायर मास प्रेजेंट सेंटर ऑफ मास. यहां से आपको पता चल जाएगा दैट सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, सिमेट्रिकली सेंटर पे. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? why center? देखो होगा क्या, when gravity is constant, समझना ध्यान से सुनना, when gravity is constant तो center of mass and center of gravity both are same. What is center of gravity? Center of gravity is the point at which the entire force you can assume of force of gravity is acting. जैसे in this case suppose ये rod है तो gravity बराबर लग रहा है, equally सब पे लगेगा ना. so फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां पे लगेगा, एट विच पॉइंट, कहां पे बोलो? सेंटर पे ना. तो व्हेन, देखो एक चीज याद रखना, ग्रेविटी हमेशा जो है जब कांस्टेंट होता है तो कहां पे लगता है वो, इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है वो, mg. समझ में आया कि नहीं? सो दैट्स व्हाई यू आर बैलेंसिंग द रॉड यूजिंग द मिडिल पॉइंट, है ना. मिडिल पॉइंट का ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो रिजल्टेंट है that is passing from the center of mass. समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए it's a very close relation center of mass and center of gravity. 99% बच्चे यही सोचते हैं कि center of gravity and center of mass both are same thing. नहीं, both are different.
Center of mass is a position where you can assume the entire mass to be present, but center of gravity is a point where you can assume the entire force of gravity is acting. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझा. ठीक है, क्योंकि सपोज इफ यू टेकिंग दिस रॉड इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, तो उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा. आप ये थोड़ी ना बोलोगे सेंटर ऑफ मास रहा ही नहीं, सेंटर ऑफ मास तो मिडिल पॉइंट ही रहेगा. ठीक है, अब ये बताओ इन दिस केस सपोज इफ यू टेक अ कैविटी, एक कैविटी ले लो, इसके नीचे कैविटी ले लो. इफ यू टेक अ कैविटी, ऐसा फिल दिस कैविटी, मतलब दिस इज अ कैविटी, कैविटी को फिल नहीं करना पड़ता है. ठीक है, यू डोंट नीड टू फिल द कैविटी. कैविटी को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दिस इज द कैविटी. अब बताओ whether the center of mass will lie in the center या क्या होगा. स्कूप आउट कर लिया है ना, है ना, आपने कुछ मास जैसे निकाल लिया है. बताओ सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, आपका आइडिया क्या कहता है, किस साइड? विल दैट रिमेन एट द सेंटर या कहीं और चला जाएगा? बताओ. बैलेंसिंग पॉइंट राइट में चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? So left. लेफ्ट में, है ना. देखो आपको पता है कि सपोज व्हेन यू टेक आउट सम मास, सो योर बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट दिस साइड. हाँ या ना? हाँ सर. ठीक है, सो दैट इज द सेंटर ऑफ मास, है ना. ये मतलब आपको पूरा आइडिया आ रहा है कि यू कैन अज्यूम दैट दिस पॉइंट टू बी एज अ पॉइंट ऑफ मास. सो दिस इज द basic idea of center of mass. So center of mass is a point where you can assume the entire mass to be present as a point mass, and you can make the system as a point mass. मतलब कि इस पूरे रॉड को you can make a point mass, इस पूरे रिंग को you can make a point mass, इस पूरे डिस्क को you can make a point mass. समझ में आया? Clear? Is it clear? Sir, in the last diagram, did you assume center of mass and the right? In the last diagram, we can assume center of mass. Sir, did you assume it on the right? No. This is the cavity, na beta. This is the cavity. So when you Oh, okay, sir. suppose you are having a rod, and you're balancing it from the middle point. And now suppose you have taken out this component. Now the balancing point will shift now towards left. Yes, sir. So चलो नोट कर लो. You have to draw all this drawing. पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा. ठीक है, जल्दी से बना लो. अब बताओ मुझे, suppose we are having two people. दो लोग हैं हमारे पास. एक थोड़ा सा स्किनी टाइप का है और एक थोड़ा मोटू टाइप का है. बताओ इन दोनों सिस्टम में इसका मास m है, इसका 100 m. इफ यू टेक देम एज अ सिस्टम, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस साइड होगा? पतले वाले के साइड कि मोटे वाले के साइड? किधर आएगा? ऑब्वियसली 100 100. ठीक है, सेंटर ऑफ मास वेयर द एंटायर मास, कौन सा? 101 मास जो है पूरे सिस्टम का, तो सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट दिस स्किनी बॉय, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा. मान लेते हैं उसका हेड इज दिस अपर हाफ इज मोर बल्की देन लोअर हाफ, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस मैन, जिसका बड़ा सा पेट है, बड़ी बड़ी टांगे भी हैं, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इससे ऊपर होगा, इसके नीचे होगा? अबव दिस लाइन और बिलो दिस लाइन? इट विल बी बिलो दिस लाइन ना. Below. Okay, Below. so center of mass is a point where you can assume the entire mass as a single or point mass. Clear है? It may be inside the body or it may be outside the body. ऐसा कुछ होता नहीं है कि that must be inside the body. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. ठीक है? क्यों? Suppose ये किसी को, if a man is standing like this, ऐसा है, इस तरीके से, ऐसे. अब बताओ in this case center of mass will lie outside the body, है ना. center of mass will lie outside the body, है ना. suppose if this man is leaning on the ground making some angle, so this center of mass is not inside the core of the body. It may be inside or outside the body. You can take the case of ring. In case of ring, center of mass is lying
in the empty space. तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि center of mass should lie in the core of the body. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. Clear है कि नहीं? Is it clear? So, but how can it lie outside? How can it lie outside? Because Yeah. it's a just beta, it's just a balanced position. It's a position. Okay. It is not the actual mass that you can assume that the actual mass is outside the body ना, but that is a balance point where suppose इधर कुछ weight हो गया, इधर कुछ weight हो गया, when you take the balancing यहाँ पे कहीं आएगा, समझे? तो हमें उसका पोजीशन कैसे पता चलेगा? वो अभी निकालेंगे, we will calculate the position. हम position निकालेंगे, center of mass कैसे निकलता है, ठीक है? समझा कि नहीं? और ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास का पर्पस क्या होता है, मतलब व्हाट इज सेंटर इट मास मेंट का फॉर? ये पर्पस होता है, सपोज इसका फायदा क्या होता है, सपोज आपके पास कुछ गंदा सा सिस्टम ऐसा कुछ है, स्ट्रिंग से लगा हुआ एक स्फीयर है, फिर स्फीयर के नीचे सपोज यू आर हैविंग अ टी शेप ऐसे रॉड है. अब इसको अगर आपको चलाना है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे फोर्सेस लगाने. तो नाउ यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन अज्यूम दिस सिस्टम, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो. नाउ यू कैन रिप्लेस दिस सिस्टम बाय पॉइंट मास ऐसे. इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे मान लेते आता है सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का. सो यू कैन अज्यूम दिस सिस्टम टू बी रिप्लेस विद अ बॉब, एम मास का बॉब है ना, सीएम यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे. अब बताओ, नाउ यू कैन सॉल्व ना, है ना? So this और is आप ये रिपीट कर सकते हो? CM का यूज क्या, सेंटर ऑफ मास का. सपोज यू आर हैविंग अ सिस्टम, दिस इज द स्फीयर, देन अ रॉड, देन अगेन अ रॉड, है ना. नाउ सपोज इफ यू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, now you can replace this system as a bob, single point mass bob. जहां पे सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, वहां पे यू कैन अज्यूम अ बॉब, है ना. अब आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये इसका यूज है. यू कैन रिप्लेस द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद अ पॉइंट मास. समझा? क्लियर है? ठीक है, हाँ सर. चलो नोट कर लो. कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो वी विल कैलकुलेट 3 थिंग्स. 3 चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे. वो 3 चीजें क्या क्या हैं? फर्स्ट इज पोजीशन. वी विल कैलकुलेट 3 थिंग्स. फर्स्ट इज पोजीशन. We will call it RCM. RCM क्या है? This is a position of center of mass. Second is VCM. This is velocity of center of mass. And the last one is ACM. Acceleration of center of mass. क्लियर है कि नहीं? ठीक है, 3 ही चीजें होती हैं. One is position. When you differentiate this, you will get the velocity. When you differentiate this, you will get the acceleration. समझ में आया कि नहीं? Is it clear? Now suppose if you are having a system, these are the axes. इसमें m1 mass is at position x1, y1, z1. m2 mass is at position x2, y2. मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल? बेटा आवाज आ रही है? चलो इधर देखो. 3 चीजें, थ्री थिंग्स वी विल कैलकुलेट. वन इज पोजीशन. पोजीशन कहां से ब्रेक हो गई थी वॉइस? कहां से? पोजीशन के बाद. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट Yes, पोजीशन, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन. पोजीशन को व्हेन यू डिफरेंशिएट यू विल गेट वेलोसिटी. वेलोसिटी को व्हेन यू डिफरेंशिएट यू विल गेट एक्सेलरेशन. ठीक है, ठीक है. So m1 mass having position this, m2 mass having position this, m3 mass having position
x3 y3 z3। अभी आवाज आ रही है ना सबको? बोलो। हाँ सर। So हाँ this सर। this position can be r1, इसको you can take r1 position, r1 हो सकता है ना, this is r1 vector, this position as r2 vector and this position as r3 vector। सही है कि नहीं? क्लियर है? r1 r2 r3 बोलो। अरे क्लियर है? हाँ सर। चलो, नाउ कैलकुलेशन ऑफ, इसमें क्या होता है देखो, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट लाइक कैलकुलेशन ऑफ, जैसे एवरेज निकालते हैं। तो देखो कैसे आएगा, व्हाट विल बी एक्सियम, एक्सियम क्या आएगा, m1 इंटू में x1 प्लस m2 इंटू में x2 प्लस m3 इंटू में x3 डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास, m1 plus m2 plus m3। so this is the axiom, okay। now when we calculate YCM, what will be the YCM, बताओ क्या होगा, m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by total mass, m1 plus m2 plus m3। what will be ZCM, what will be ZCM, बोलो। 1 Z1 plus M2 Z. Center of And mass, center of mass will lie here, axiom, YCM, ZCM, center of mass will lie at this point, okay। so what will be ZCM, m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 divided by m1 plus m2 plus m3। this formula is same as the calculation of average, किसी चीज का average when you calculate, this is the formula। any doubt with this formula, any doubt, कुछ पूछना है? सर इसको वेक्टर फॉर्म में कर रहने सकते देंगे हैं, ना? बिल्कुल बिल्कुल, you can, we can take it as a vector form। देखो RCM is XCM I plus YCM J plus ZCM K, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, समझ गए। एंड अनदर थिंग, आप ऐसे भी कर सकते हो RCM को, कैसे, m1 इंटू में r1 प्लस m2 इंटू में r2 प्लस m3 इंटू में r3, ऑल ऑफ देम आर द सेम फॉर्मूला, दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, सब में एक ही रिजल्ट आना है, ठीक है, समझा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। व्हेन यू टेक वेलोसिटी, तो VCM क्या आएगा बताओ, VCM व्हेन यू टेक द वेक्टर, आप उसको इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो x y z करके, आप उसको कंबाइंड भी निकाल सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। m1 v1 प्लस m2, ऑल द वेलोसिटी इज नॉट गिवन, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको। m1 प्लस m2 प्लस m3, व्हाट विल बी ACM, एक्सेलरेशन क्या आएगा, ACM m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। इज इट करेक्ट? तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए, ऑल ऑफ देम, बोलो। एनी डाउट? नोट करो, चलो एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन करना है आपको। You are having 3 mass, one is 2 kg, इसका पोजीशन है 2, 3, 4, वन इज 3 kg, इसका पोजीशन है 4, 8, 10,
एंड 1 इज -1 kg। अब आप पूछोगे सर मास नेगेटिव कैसे हो सकता है। कुछ कैलकुलेशन में वी हैव टू अज्यूम नेगेटिव मास 1,1,1। चलो, अगर मास नेगेटिव है टेक इट नेगेटिव, इफ इट इज पॉजिटिव टेक इट पॉजिटिव। ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला, फाइंड RCM कितना आएगा। तो योर आंसर बताओ, पोजीशन RCM, व्हाट इज RCM बताओ, क्या है आपका आंसर, व्हाट इज RCM, कितना आ रहा है, कोऑर्डिनेट बताओ। So 15/4 I cap, 15/4, देन नेक्स्ट 29/4 J cap, and 37/4 K cap. 37/4 ओके, XYZ मतलब IJ के थे, है ना। Awesome. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट XCM। 2 देखो, 2 इंटू में 2, देन 3 इंटू में 4, देन -1 इंटू में -1 इंटू में 1 डिवाइड बाय मास 2 + 3 -1, सो 4 18 नहीं 16 सॉरी 12 16 16 15 ओके 15/4, XCM इज 15/4। एनी डाउट विद कैलकुलेशन ऑफ XCM, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। 3 इंटू में 8 -1 इंटू में 1, 2 + 3 -1 कितना आएगा, 24 24 30 29 29/4। व्हाट इज ZCM? ZCM 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 4, देन 3 इंटू में 10, then -1 into 1 divided by 2 + 3 -1, so that is equals to 8 38 38 7, so this is the answer है ना। मियां ने जो बताया दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको 4 करना, ठीक है, दिस इज 4 37/4। एनी डाउट किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट? if you want to take it as a position, so this is because we are taking the position from origin से ले रहे हैं ना, तो you can easily write 15/4I plus 29/4J plus 37/4K, करेक्ट है? इज इट करेक्ट? पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही होता है ना? नहीं, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। क्वेश्चन कैन आस्क यू दैट फाइंड द पोजीशन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो R2 - R1 करके निकालना पड़ता है, समझे? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इट्स फ्रॉम ओरिजिन ना। एनी डाउट विद द सॉल्यूशन? किसी को कुछ पूछना है जल्दी से बताओ, कुछ पूछना है? एनी डाउट? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन। टू kg mass, this is moving with 2I plus 3J plus 4K. 5 kg mass is moving with -10I plus 8J plus 13K. 3 kg mass is moving with I plus 3J plus 3K. This is the velocity, है ना? This is in meter per second. Meter per second. Meter per second. Meter per second. Find VCM. VCM बताना है कितना आएगा, velocity of center of mass। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा इसके लिए। देखो इट्स वेरी सिंपल यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान था ये। देखो 2 kg का, देखो साफ साफ देखो यहाँ पे, अगर 2 kg की बात करें तो 2 kg का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, v1 इज 2I plus 3J plus 4K एंड 5 kg का कितना है, इट्स
माइनस 10i प्लस 8j प्लस 13k। 3 kg का। मेरी आवाज तो आ रही है ना? इज इट ऑडिबल? sir. So you have two option, either you go for just v1 v2 ये फॉर्मूला लगा दो, और you can calculate individual, है ना? जैसे suppose if you want to calculate vxcm only x direction, in x direction, तो क्या हो जाएगा 2 into में 2, ठीक है, 5 into में -10, then 3 into में 3, sorry 3 into में 1, divide by entire mass is of 10 kg। कितना आता है? कितना आ रहा है? -43 by 10. -50, 46, -43/10, correct? Is it correct? So हाँ, it's in I direction, I डाल देंगे इसको, क्यों? क्योंकि this is x वाला है। What about vycm? क्या आएगा vycm? 55 by 10. 2 into में 3 plus 5 into में 8 plus 3 into में 3 divide by 10, 46, 55 by 10, correct है? हाँ, This is J. And what about VZCM? ZCM कितना आएगा? 2 into में 4 plus 5 into में 13 plus 3 into में 3 divided by 10, कितना आता है? 82 by It's 65 plus 873, is it 82 by 10? yes, sir. बताओ भाई, this is of k. So you have two options, either you can calculate xcm, vycm, vzcm individually, or you can go for the formula velocity of center of mass। देखो यहाँ पे you can write velocity of center of mass as -43 10i plus 55 by 10 j plus 82 by 10 k। या तो सीधे इसको लेके कर सकते हो, या यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जो पीछे किया था उसको भी आप सीधे कर सकते हो। VCM इज इक्वल्स टू 2v1 वेक्टर प्लस 5 v2 वेक्टर प्लस 3 v3 वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास 10। तो कितना आता है देख लो, सबको करके देखो, यही आंसर आएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। किसी ने ऐसे करके देखा है? ऐसे करके हाँ, देखा है? यू विल गेट द सेम आंसर। सेम आ रहा है ना? हाँ, sir. ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर। चलो, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है? यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो, कर लोगे? हाँ हाँ, sir. एक क्वेश्चन और दें, 2 क्वेश्चन और देंगे, देन वी विल मूव टू द इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, पहले से नोट कर लो, 1 मिनट। sir. चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में यू हैव टू रिजॉल्व। इस क्वेश्चन में मैं आपको अप्रोच पहले बता दे रहा हूँ कि यू आर हैविंग वन मास ऑफ 2 kg मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ये 2D में ही है, सिर्फ 2D में है, मतलब x और y में ही है। वन मास इज ऑफ 3 kg moving upward with 20 meter per second, and one mass is of 5 kg moving, making some angle 37 degree with 50 meter per second। ठीक है, अब you have to find VCM। find VCM, velocity of center of mass। अब आप ऐसे निकाल नहीं सकते, क्यों? बिकॉज एक x में एक y में, बट दिस इज at inclined 37 degree with the horizontal, तो आपको you have to resolve them, है ना? चलो करके बताओ, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। निकालो, कर लिया होगा। देखो, you have to take the component। ये कितना आएगा? this one 50 cos 37, 50 cos 37, that is equals to 40 ना? This is 50 sin 37 degree, that is equals to 30।
सही है कि नहीं? Is it correct? हाँ सर. So 5 kg is moving left with the speed of 40, moving down with the speed of 30. We have to take upward as plus j, downward minus j, right plus I, left minus I. 3 kg upward with 20 meter per second. Then 2 kg in right side with 10 meter per second. So first we will calculate V xcm. When we talk about V xcm, देखो 2 kg is moving with 10 meter per second. 3 kg is moving with 0 meter per second in x direction. There is no velocity in x ना 3 का क्या करोगे 0. 5 kg is moving with minus 40. So 5 into minus 40 divided by total mass is 2 plus 3 plus 5. कितना हो गया 20 minus 180 by 10 minus 18. सही है कि नहीं? मैच कर रहा है? हाँ सर. नेक्स्ट इज कुछ लोग गलती क्या करेंगे 3 वाले को लेंगे ही नहीं क्योंकि ये मूव नहीं मास तो रहेगा ही रहेगा नीचे है ना. व्हाट इज वी वाई सी एम? 2 kg is moving with 0 velocity in y direction, so 0, plus 3 kg is moving with 20, 5 kg is moving down with minus 30. Upon my mass is 2 plus 3 plus 5. कितना आता है? Is it minus 150 plus 60? Is it 90? Minus 90 by 10. हाँ Minus सर. 9. तो इस तरीके से करेंगे. बताओ, is it difficult? क्या मुश्किल है ये? बोलो. नहीं सर. अब मुझे पूरा इतना ही समझाना था कि हाउ टू कैलकुलेट वीसीएम. बस एक छोटा सा पॉइंट आएगा कोलिजन में, छोटा सा पॉइंट. उस छोटे से पॉइंट को समझाने के लिए मैंने तुम्हें सेंटर ऑफ मास पढ़ाया है. ठीक है, उस छोटे से पॉइंट को समझाने के लिए मैंने तुम्हें सेंटर ऑफ मास पढ़ाया है. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं. ये नोट हो गया सबका? नोट हो गया? एक मिनट नोट कर लो इसे. एक चीज का मुझे सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ तो मैं श्योर हो जाऊंगा दैट यू आर एबल टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास. है ना, ये टी शेप का, टी नहीं है, हाँ टी शेप का ही ले लो. इक्वल लेंथ सेम मास, आइडेंटिकल रॉड्स हैं एम और एल लेंथ का, एम और एल लेंथ का. एंड दिस इज द ओरिजिन. ओरिजिन कहाँ पे है? ये ओरिजिन है 0,0. फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड आरसीएम. सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है. बताओ कहाँ पे आएगा? रॉड के ऊपर क्या लिखा आपने? रॉड के ऊपर मास, एम मास एल लेंथ. एंड राइट बिसाइड द वर्टिकल रॉड. वर्टिकल रॉड कहाँ पे? ये या सो दैट एम मास एल लेंथ, लेंथ इज एल, मास इज एम. क्लियर? सर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? देखो इट्स वेरी सिंपल. आपको दोनों के सेंटर ऑफ मास लेने पड़ेंगे, है ना. इफ यू टेक द सेंटर ऑफ मासेस तो इसको यू कैन टेक दिस पोजीशन एज कितना? y इज l, x इज l by 2. ये इतना हो गया. इसका क्या हो जाएगा? l by 2, l by 2. बताओ, एनी डाउट? एनी डाउट? No sir, how I बेटा this is l by 2 ना, this is l by 2 and this is l ना. क्लियर? तो इसका सेंटर मास यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर मास यहाँ पे आएगा. हाँ या ना? बोलो. हाँ सर. C1 एंड C2. तो ये कितना है यहाँ से? l by 2 है हाइट l, दिस इज l by 2, l by 2. तो कितना निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? xcm m इंटू में l by 2 प्लस m इंटू में l by 2 डिवाइड बाय m प्लस m. आंसर इज l by 2. व्हाट इज ycm? m
इंटू में एल प्लस एम इंटू में एल बाई टू डिवाइड बाय एम प्लस एम। कितना आता है, कितना आ रहा है बोलो? 3L/4 कितना आ रहा है? इज इट 3L/4? हाँ सर। सो 3L/4 कहाँ पे आएगा, एट विच पॉइंट? यहाँ पे कहीं आएगा। तो COM पूरे सिस्टम का यहाँ पे आएगा, कहाँ पे? L/2, 3L/4। इज इट करेक्ट? समझ में आया? हाँ सर। तो बस इतना ही, ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो। एनी डाउट यू कैन आस्क, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो अब आप किसी भी शेप का निकाल लोगे ना कि नहीं निकाल लोगे, बताओ? किसी भी शेप का मतलब कि अगर सिमेट्रिक शेप दिया हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, है ना? हाँ सर। सर अब एक बस लास्ट में पूछ रहा हूँ, सपोज 2 ब्लॉक्स आर मूविंग। ये सिर्फ इसलिए है कि दिस कंसेप्ट आई विल यूज एंड आई एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट दिस, आई कैन एक्सपेक्ट दिस आंसर टू बी करेक्ट फ्रॉम योर साइड, है ना? क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सपोज ये दो ब्लॉक हैं M1 M2, दिस वन इज मूविंग विद वेलोसिटी V1 एंड दिस वन इज मूविंग विद वेलोसिटी V2। फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड VCM। कितना आएगा बताओ? दिस इज V1, दिस इज V2, बताओ व्हाट इज VCM? इसका आंसर बिल्कुल सही सबका आना चाहिए, बताओ क्या आएगा, बताओ? इसको भी सोच रहे हो? इसको भी सोच रहे हो? M1V1 plus M2V2 और by क्या यार, बस इतना ही तो है। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। इसको भी सोचना पड़ रहा है तो फिर यार दिक्कत वाली बात है फिर तो। क्या इसको सोचना पड़ रहा है क्या कि कैसे करेंगे? इतना करने के बाद यार ये तो निकाल लोगे ना आगे। दिस विल बी रिक्वायर्ड, आपके पैकेज में सीधे इसको डायरेक्ट दे दिया गया और मैंने शायद आपको पूरा पढ़ाया हुआ है कि भैया सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन, हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी, हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। फिर पोजीशन पे क्वेश्चन किया है, देन वेलोसिटी पे क्वेश्चन किया है, फिर रिजॉल्व करके निकाला है, फिर पोजीशन निकाला है, फिर ये पूछा है। बताओ अब तो निकाल लोगे ना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, चलो अब आज यही मतलब हाँ हाँ बोलो बोलो। सर एक एक्सेलरेशन निकालने वाला क्वेश्चन दे दोगे? अरे कुछ नहीं होता है, जैसे ये है हाँ सर सेम ही है फिर भी बेटा, एक। ऐसा देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखा है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दोगे तो यही फॉर्मूला लग के उसमें भी हो जाएगा। चलो मैं दे देता हूँ, आपने बोला है तो मैं दे देता हूँ। कैसा चाहिए, रिजॉल्व करके दे दें या वैसा दें, कैसा चाहिए? सॉल्व वाला, हाँ मतलब सॉल्व जिसमें हमको करना पड़े। करना तो सब में पड़ेगा। 3 kg is moving with 5 meter per second square. 2 kg is moving with 20 meter per second square. 5 kg is moving at an angle 37 degree. 10 meter per second square. Find ACM. ACM निकालो। तो अगर V1 वो सब दे रखा है और पोजीशन पूछे तो इंटीग्रेट करने से आ जाएगा। हाँ हाँ और क्या इंटीग्रेट, लेकिन कैसे करोगे? ऐसे थोड़ी ना उस आपका, अगर आपका उस समय पे स्पीड दिया हुआ है ना, तो थोड़ी ना इंटीग्रेट, तो इंस्टेंटेनियस हो गया ना। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दे हैव प्रोवाइडेड अ फंक्शन, तो हमेशा ही आएगा। वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को व्हेन यू इंटीग्रेट यू विल गेट चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी को व्हेन यू इंटीग्रेट यू विल गेट चेंज इन सॉरी एक्सेलरेशन को व्हेन यू इंटीग्रेट यू विल गेट चेंज इन वेलोसिटी एंड व्हेन यू इंटीग्रेट वेलोसिटी यू विल गेट चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। वो तो हमेशा ही मिलेगा। हाँ सर तो फंक्शन देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा हाँ तो नहीं हाँ पूछेगा बिल्कुल कि बिल्कुल V1 देखते थे पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल।
इसे घर से करके लाओगे कि मैं भी कराऊं? घर से करके लाओगे? हाँ सर। ठीक है, इसे आप करके लाइएगा। तो आज यही थ्योरी रखेंगे।